guys, good morning. My name is Nahid, and in today's class, I'm going to give you the explanation of your poem that is there in this upcoming examination. That's All the World's a Stage. इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. So I suggest you to open up your book, जिससे बहुत ज़्यादा help मिल सकता है, because I am also going to explain from your book. And those who are watching, outside of the school campus, and anyone who is a teacher or anything, this is just a to the point discussion for the students. So I will just keep it very short and intact. So let's see. Everyone knows that William Shakespeare is world's best or greatest, one of the greatest dramatists. ड्रामा इन्होंने लिखा है. ड्रामा लिखने में महान है ये. जितने भी ड्रामेटिस्ट का नाम आता है उनमें से ग्रेट ड्रामेटिस्ट में से एक विलियम शेक्सपियर हैं. Now you see, ये जो पोएम है All the World's a Stage, this has been taken from one of his plays, namely As You Like It. As You Like It से ये लिया गया है. ये एक As You Like It का एक सीन कह सकते हैं हम लोग हैं. यहाँ पे विलियम शेक्सपियर is saying that जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, ये जो वर्ल्ड में, the world in which we are living is like a stage, and he has shown human beings playing different roles. कि 7 रोल के बारे में उन्होंने बात किया कि there are 7 stages of a human being's life. इसके साथ you can relate because you are a kid, and then the next stage what you are going to be. adult हो जाओगे, उसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा, फिर बाद में बुढ़ापे में फिर से बचपन आ जाता है. Means when people get old they become childish again. So Shakespeare, as great dramatist, tried to explain these things. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि he sees a person's life as a series of 7 ages, different acts, just like a play. एक नाटक के प्ले के जैसा उन्होंने बताया कि एक स्टेज ये होता है, दूसरा प्ले में ये आ रहा है, तीसरा स्टेज ये है, चौथा स्टेज ये है, and so on. Then he describes each of these ages very vividly. एक स्टेज को बहुत ही ध्यान से इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, and he has given some comment on it. comment or two का मतलब है हर एक स्टेज के बारे में अपना कुछ क्रिटिसिज्म दिया है, कुछ कमेंट्स उन्होंने दिया है. And he comes to the final stage, and the final stage is filled with sadness, filled with pathos. दुख से भरा हुआ होता है last age, because nobody wants to die. Do you want to die? You don't want to die, right? तो इससे पहले हम लोग पेज नंबर 136 में चले जाते हैं. 136 में we have a lot of word meanings, as you can see here, if you are following the book with me. यहाँ पे acts का मतलब होता है रोल played in a play, मतलब जो रोल हम प्ले करते हैं एज ए हीरो, विलन, साइड पार्ट जो भी हैं. उसके बाद एजेस मतलब पीरियड ऑफ लाइफ होता है. म्यूलिंग एंड प्यूकिंग का मतलब होता है क्राइंग, एंड प्यूकिंग मीन्स वॉमिटिंग. सैशल इज लाइक अ स्कूल बैग हियर, एंड साइंग लाइक अ फर्नेस मीन्स ब्रीदिंग हार्ड इन एन इंटेंस पैशन. जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हमारा ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाता है. ए वोफुल बैलड आईब्रोज, एक लाइन है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम में. इसका मतलब होता है एक रोमांटिक पोएम कंपोज्ड इन द प्रेज ऑफ अ लवर्स ब्यूटीफुल फेस. किसी के चेहरे को देखकर कोई कुछ लिखना. जैसे गाना है इन हिंदी, जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब एंड ऑल दैट, द सॉन्ग. तो इसका मतलब क्या है? व्हेन यू सी समबडी एंड यू जस्ट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ दैट इंडिविजुअल, ब्यूटी ऑफ दैट थिंग, इसी को रोमांटिसिज्म कहते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बात बताई, ये भी एक स्टेज होता है. ओके, विल टॉक अबाउट दैट. Then you can see there are other words like pard, मतलब leopard होता है. This is a poetical word that the poets use all the time. Then seeking the bubble reputation means aiming to win fame and glory even if they are short-lived. मतलब जब हम जवान रहते हैं हमें हर एक का attention चाहिए होता है. Whether that attention is just 5 minutes attention or 2 minutes attention, but we need attention. So there's one of the things that we do when we are very young. उसके बाद we see in the cannon's mouth मतलब होता है facing great danger of life, justice, judge, believe it good. और मैं आगे यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला. Let's quickly go to the poem. और जिस वक्त हमें ज़रूरत होगा रेफरेंस का, we will come back to this page and हम उस चीज़ को टोटली रेफ़र करेंगे. तो उसके साथ हम लोग पहले वाले पेज में चले जाते हैं. I hope your book is open with you. तो यहाँ पे let's see कविता का नाम है All the World's a Stage. मतलब पूरा जो ये दुनिया है ये एक स्टेज के जैसा है, और हम सब कठपुतलियाँ हैं. हम सब जो है वी आर जस्ट प्लेयर्स. वी आर लाइक द एक्टर्स एंड द एक्ट्रेसेस. इस पूरे दुनिया में हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं. तुम्हारे पापा तुम्हारे मतलब एक रोल प्ले कर रहे हैं, तुम अपना एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो, मैं मेरा एक टीचर का रोल प्ले कर रहा हूँ. इस तरह से दुनिया में जितने भी लोग हैं, all of them are playing a role, a vital role they are playing.
एंड विलियम शेक्सपियर हैज़ एक्सप्लेन देम इन 7 स्टेजेस, 7 स्टेजेस में उसको बताया। कविता बिल्कुल ही इट इज़ नॉट अ टफ कॉम्पोजिशन, सो इफ यू पे अटेंशन बहुत आसानी से तुम समझ सकते हो। तो पहले कहा है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, पूरा दुनिया एक स्टेज है और हम सब यहाँ पे एक्टर्स हैं। हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर ऑल एक्टिंग हियर। पहला लाइन शुरू होता है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। पहले 2 लाइन में कह रहे हैं कि पूरा दुनिया जो है एक मैदान, एक मंच है, एक स्टेज है, एंड जितने भी मर्द हैं और औरतें हैं वो सब यहाँ पे प्लेयर हैं, मतलब हम अपना रोल निभाते हैं। मैं, जैसे मैंने पहले बताया, मैं मेरा टीचर का, तुम तुम्हारे स्टूडेंट का। बाद में रोल चेंज होते रहते हैं, ठीक है, वी विल कम टू नो दैट, रोल चेंज होते रहते हैं। तो ये पूरा दुनिया एक स्टेज है, हम अपना रोल एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए निभाते हैं एंड फिर चले जाते हैं। तो यहाँ भी यही बताया गया है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, सबके सब यहाँ पे प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। देखो, नाटक जब पहले ज़माने में होता था तो जैसे फिल्में होती हैं, फिल्म्स आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामा या प्ले का मॉडर्न फॉर्म है, क्योंकि इसमें हम लोग एडिट कर देते हैं एडिट करके इसको बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। लेकिन उस वक्त में जब ड्रामा बनाया जाता था, ठीक है, तब लाइव एक्टिंग होती थी। कोई डायरेक्टली एंटर कर रहा है, ठीक है, कोई डायरेक्टली एंटर कर रहा है, उसके बाद उसका एग्जिट भी हो जाता है। तुम देख रहे हो पार्ट पार्ट में इसको किया जाता था, बहुत लंबा होता था। आजकल की जो फिल्म्स हैं दे जस्ट गो ऑन अबाउट 1 आवर या 1.5 आवर, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलते। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हर एक एक्ट होता था, इसमें ये लोग आएंगे, फिर वही लोग दूसरे कैटेगरी में आएंगे, मतलब अपना कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करके। एनीवेज, तो यहाँ पे बताया जा रहा है पूरा वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज है एंड हम सब जो है मैन एंड वीमेन, वी ऑल आर प्लेयर्स हियर, एक्टर्स हियर। हमारा एंट्रेंस है, हमारा एग्जिट है, हम आके अपना रोल प्ले करते हैं, फिर हम यहाँ से निकल भी जाते हैं। इसका मतलब है हमारा जन्म होता है और हम मर भी जाते हैं, बिकॉज नोबडी इज परमानेंट हियर। 4 नंबर लाइन में देखो, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स। एक आदमी एक समय में बहुत से रोल निभाता है। जैसे तुम अभी बच्चे हो, उसके बाद तुम जवान हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारा दूसरा स्टेज आएगा, उसके बाद और एक स्टेज आएगा, ठीक है ना, बुढ़ापा आएगा। तो वही ऐसे ही एक आदमी, मैं डिफरेंट रोल प्ले करते आ रहा हूँ। मैं पहले बच्चा था, ठीक है, उसके बाद मैं स्कूल जाना शुरू किया, उसके बाद मैंने जो है मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, फिर मैंने जॉब करा, अब मैं जॉब एंड आई एम अ मैरिड मैन। सो इन दैट सेंस यू अंडरस्टैंड कि एक आदमी डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। वही शेक्सपियर कह रहे हैं कि एकदम सिंपल बात है। फिर देखो, ही एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, वो 7, इसको मतलब शेक्सपियर ने 7 स्टेज बताया है, 7 स्टेजेस बताया कि उसको वो 7 स्टेजेस को प्ले करता है टोटली। सॉरी, गले में थोड़ा। फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब बच्चा, शिशु। पहला स्टेज जो होता है वो बच्चे का होता है। उस वक्त हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यू विल जस्ट रिमाइंड अस, जैसे तुम बचपन में क्या करते थे वही सारी चीज़ों को वो रिमाइंड करवाएंगे। जब देखते हैं इन्फेंट में हम लोग क्या करते हैं, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। जब हम हॉस्पिटल में थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तो म्यूलिंग का मतलब होता है बिटरली क्राइंग, बच्चे जो रोते हैं। तुमने देखा होगा हॉस्पिटल में बच्चे जो रोते हैं, वैसे हम लोग रो रहे थे। एंड नर्सेस के हाथों में हमने बहुत बार वोमिटिंग भी किया है। जब बच्चा, मतलब जब हॉस्पिटल में उसका जन्म होता है तो नर्सेस के हाथों में ही होता है। और नर्सेस जब हमें मतलब अपने गोद में रखती हैं तो वी आर यूजुअली वी आर म्यूलिंग, वी आर क्राइंग एंड एट द सेम टाइम वी आर पीकिंग एट द नर्सेस आर्म्स। ये पहला सीन है, ये दिमाग में तुम्हारे क्लियर होना चाहिए। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। उसके बाद हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, मोटर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, हम चलना सीख लेते हैं। वाइनिंग स्कूल बॉय मतलब हमें स्कूल नहीं जाना होता है। यू रिमेंबर योर नर्सरी टाइम्स, यू नेवर वांटेड टू कम टू स्कूल, डिड यू? तुम कभी नहीं आना चाहते थे। वाइनिंग मतलब कंप्लेनिंग, नहीं जाना स्कूल, यू नो दैट स्टेज। उसके बाद विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। तो सैचल मतलब यहाँ पे बैग है, स्कूल बैग है, यू नो। देन देयर वाज द एक्साइटमेंट विद द बैग। तो हमें, यू नो, आवर पेरेंट्स यूज्ड टू बाय अस दीज न्यू बैग्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जिन्हें देख के, जिन्हें पा के हमें थोड़ा बहुत स्कूल के लिए इंटरेस्ट आता था। यू नो, वी बॉट जियोमेट्री बॉक्सेस, दिस एंड दैट। तो उससे बहुत ज़्यादा ये आता था, मतलब थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट आता था। एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह सुबह जब उठते थे तो हमारे चेहरे में वो जो खिलखिलापन है, आज शायद तुम्हारे में अभी भी है, मेरे में कम होता है। जब जितना एज होता है उतना टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, ये नहीं रहता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, स्कूल नहीं जाना है। एंड देन यू हैव योर सैचल विथ यू, योर बैग विथ यू, एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस। योर फेस इज वेरी ब्राइट ऑन दैट डे, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल। ये वाला एक सीन रहता है। क्रिपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। क्रिपिंग लाइक स्नेल, जैसे ऐसे अपना चेहरा निकालता है, इसी तरह से हम लोग मतलब
शायद पापा बोल दे स्कूल मत जाओ, मम्मी बोल दे स्कूल मत जाओ, तो बस मतलब अपने जो बाकी प्लान है वी विल जस्ट कीप ऑन डूइंग ऑल दोज थिंग्स, अनविलिंग टू स्कूल. स्टूडेंट्स किड्स एट दैट स्टेज, पर्टिकुलर स्टेज डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल. ये एक स्टेज है, यू कैन इमेजिन ऑब्वियसली. देन द लवर स्टेज, फिर आता है जब हम जवान हो जाते हैं, हमारे शादी का वक्त आ जाता है. दिस इज क्वाइट मेच्योर. उसको मेच्योर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. जब हम जवान हो जाते हैं, जब हमें अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने पड़ते हैं, साइंग लाइक फर्नेस, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस स्टेज में. हम फियरलेस रहते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा रहता है. साइंग लाइक फर्नेस विथ ओफुल बैलर्ड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज. एंड लोग जो है अपने लाइक आवर पेरेंट्स, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स में इतने सुंदर संपर्क हैं. पापा मम्मी को कभी कभार तारीफ़ किया करते हैं, मम्मी पापा की तारीफ़ किया करते हैं, तो उनके चेहरे के बारे में बोलते हैं, उनके आचरण के बारे में बोलते हैं, बिहेवियर के बारे में बोलते हैं. तो वो एक स्टेज रहता है जिस स्टेज में आदमी जब चला जाता है. हम सबके लाइफ में वो स्टेज एक ना एक दिन आएगा, हम उसमें चले जाएंगे. तो हम बस वही है, सही तरीके से सही रिलीजियसली हम लोग उस चीज़ के बारे में मतलब तारीफ़ें करेंगे. जिस तरह से हर एक बंदा जब जवान होता है तो वो तारीफ़ करता है, जैसे हमारे पापा हमारे मम्मी के बारे में करते हैं. तो वो एक स्टेज रहता है जब हम वी गेट मैरिड एंड वी जस्ट न्यूली सेटल एंड थिंग्स लाइक दैट. तो वो एक स्टेज होता है. देन ए सोल्जर, ठीक है, ये यूरोपियन चीज़ है, हमारे में थोड़ा नहीं होता है. उस वक्त में, जिस वक्त में ये कविता, मतलब जिस वक्त में ये नोवेल लिखा गया था, उस वक्त का सीन थोड़ा अलग था. सीन अलग इसलिए था क्योंकि देखो उस वक्त में वार चल रहा था. देयर वेर वार लाइक सिचुएशंस एट दैट टाइम. तो कंट्री डिमांड करता था कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो वार में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी ना किसी तरीके से वो वार में पार्टिसिपेट करेंगे. ये कंट्री हमेशा जो है डिमांड करता था. तो एक स्टेज ही रहता था उस ज़माने में लोगों के मतलब ये लाइफ में कि हम थर्डली हम क्या बनेंगे, थर्डली हम जो हैं वो एक सोल्जर बनेंगे. सोल्जर बनना एक स्टेज होता है. तो यहाँ पे देखो, देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पर्ड. जब हम सोल्जर बनते हैं तो हम स्ट्रेंज ओथ्स लेते हैं, शपथ लेते हैं. ओथ्स का मतलब होता है शपथ, वाउस दैट वी टेक. तो जब हम उस वक्त यंग रहते हैं, हमें जो भी बुलवाया जाता है, शपथ जो हम लेते हैं, हम रियली उसका मीनिंग नहीं समझते हैं. हम जब उसको ले लेते हैं, शपथ को हम ले लेते हैं, एंड बियर्ड लाइक ए पर्ड, बताया गया है कि शेर के जैसे हमारे दाढ़ी रहते हैं. इससे ये इस बात साबित हो रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, उत्सुक रहते हैं. जब हम सोल्जर बनते हैं हम इतना आउटकम के बारे में नहीं सोचते. वी नेवर थिंक कि हम वार फील्ड में जाएंगे, हम मर जाएंगे, या देर कुछ ऐसा हो सकता है हमारे साथ, वो हम कभी नहीं सोचते हैं. फिर उसी सोल्जरशिप में जब हम सोल्जर बने हुए रहते हैं, जेलसी एंड ऑनर. फिर ऑनर लेके हमारा एक जेलसी रहता है कि वो मुझसे ज़्यादा ऑनरेबल है, उसको ज़्यादा मेडल्स मिल रहे हैं. सो यू वांट टू हैव मोर मेडल्स, यू वांट टू हैव मोर थिंग्स इन लाइफ. एंड सडन एंड क्विक इन क्वारल. फिर हम जब जवान रहते हैं, कहते हैं ना गरम खून, तो उस वक्त में हम लोग क्या होते हैं, सडन एंड क्विक इन क्वारल. क्वारल मतलब झगड़ा होता है, झगड़े में बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं. हम बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हाइक्ड रहता है. ये भी एक स्टेज है जिसके बारे में हम सोल्जर स्टेज के बारे में बात करें. सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ. यहाँ पे ये एक तरह का जो है मेटाफोर, एक तरह का इमेजरी क्रिएट किया है शेक्सपियर ने. कहा है कि सीकिंग द बबल रेपुटेशन इन द कैनन्स माउथ. मतलब सिंपली मैं अगर तुम्हें कहूँ कि कहीं से अगर बबल निकल रहा है, बबल तुमने देखा फुब्बारे जो निकलते हैं जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, सर्फ एक्सेल को ऐसे कर लो फुब्बारे निकल आएंगे, ठीक है. तो फुब्बारे जो होते हैं ये ज़्यादा देर रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रहते हैं. कुछ ही देर में ऐसे फप करके फट जाते हैं. तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि हम जब यंग रहते हैं हम रेपुटेशन चाहते हैं, चाहे वो रेपुटेशन 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, ठीक है. सीकिंग रेपुटेशन एट द कैनन्स माउथ मतलब पूरा रिस्क ले लें. कैनन समझते हो ना, वो जो गोला निकलता है, मतलब कैनन के मुंह पे भी अगर हमें खड़े रहना पड़े, छोड़ 5 मिनट का तारीफ के लिए हम रेडी हो जाते हैं. मतलब इतना हम साहसी रहते हैं, इतना हम निडर रहते हैं उस वक्त में, और रेपुटेशन के भूखे रहते हैं. मीन्स वी वांट रिकॉग्निशन, वी वांट पीपल टू रिस्पेक्ट अस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये बात. उसके बाद एंड देन द जस्टिस. उसके बाद न्याय का एक स्टेज आता है जब तुम न्याय मतलब तुम ज्ञानी बन जाते हो, तुम दूसरे को सलाह देने लगते हो, तुम ज्ञान देने लगते हो. तुम कहते हैं ना कि यू बिकम हमारे लोकल लैंग्वेज में मुरब्बी बोलते हैं उसको. सो दैट्स व्हाट यू बिकम एन एल्डरली पर्सन. तो जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन. फेयर राउंड बेली मतलब तुम्हारा उस वक्त थोड़ा पेट वेट निकल आएगा. फेयर राउंड बेली यू विल हैव मतलब यू, इसके बहुत सारे मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, ठीक है. सो एक इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि यू विल गेट टू ईट, क्योंकि जब तुम
जस्टिस के स्टेज में आ जाओगे, यू विल डू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ है, फिर तुम एक जगह में आ जाओगे जहाँ पे आके तुम लोगों को सजेशन दे सकते हो। तो उस वक्त तुम्हारा बॉडी वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज आ जाएगा इसमें, और ऑब्वियसली तुम्हारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए यह बताया गया है कि इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैपन लाइंड, बिल्कुल अच्छे से कपड़े लगाते हुए, विद आई सिवियर, और हमारे जो आँखें हैं वो सिवियर हो जाएंगे। मतलब हम जैसे एक स्टेज है, ठीक है, एक स्टेज में हम बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, वो नहीं रहेगा। जस्टिस वाले स्टेज में से 30, 35, 40 के अंदर में हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। आई सिवियर मतलब हम लोग जो भी चीज़ें बोलेंगे वो बहुत ही सीरियसली बोलेंगे। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मेट कट, और जो बियर्ड रहेगा, जैसे मेरा वाला बियर्ड देख लो, अभी थोड़ा बहुत फॉर्मेट में है, तो ऐसे ही फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें इज्जत करें, क्योंकि हम लोग एक स्टेज में आ गए। जैसे लोग हज में जाते हैं तो अल्लाह उनको एक टाइटल देते हैं, हाजी का टाइटल देते हैं, ठीक है। तो फिर जब हमको वो टाइटल अपहोल्ड करना पड़ता है, हम उस टाइटल को जो है ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, उस टाइटल को हमें अपहोल्ड करना पड़ता है, और हम उस टाइटल को अपहोल्ड करते भी हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो हमें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब हम एक जस्टिस के स्टेज में आ जाते हैं तो हमारा बियर्ड, शर्ट, फॉर्म, एवरीथिंग, यू नो, यू कम टू अ डेजिग्नेटेड फॉर्म। पहले जैसे नहीं रहते एकदम उड़नछू या फिर उस तरीके का। बहुत नॉइजेस हैं, थोड़ा ये करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ माइक एंड ऑल दैट। ओके, लेट्स गो फर्दर। फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, उस वक्त में हमारे पास फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। वाइज सोज का मतलब होता है कि मान लो यू नो यू हैव, इसका मतलब एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, यू नो, अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हारे पास होता है। विद ओल्ड एंड न्यू इंस्टेंसेस, मतलब पुराने टाइम पे तुमने एक्सपीरियंस लिया और मॉडर्न टाइम में तुम उसको जो है एप्लीकेबल कर पा रहे हो, इस तरह का स्टेज आ जाता है। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सजेशन दे सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू योर एज, मुझे पता है तुम्हारे एज में क्या फीलिंग रहती है, क्या नहीं रहता है। तो वही है, उस वक्त में लोग फुल ऑफ गुड एडवाइसेस हो जाते हैं विद मॉडर्न इंस्टेंसेस। पीपल गिव मॉडर्न सजेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ही प्लेज हिज पार्ट, फिर वहाँ पे वो अपना पार्ट प्ले करते हैं। अभी हम लास्ट 2 पार्ट में आ गए हैं, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 6th age shifts. Please follow the book. The 6th age shifts into the lean and slippered pantaloons. 6th stage में हम लोग क्या होते हैं, हम थोड़ा लीन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, पैर वेर हमारे पतले हो जाते हैं, जवानी जो है वो थोड़ा सिकुड़ जाती हैं। एंड वी गो टू द स्लीपर्ड पैंटालून्स, लूज कपड़ों में हम लोग चले जाते हैं। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन द नोज, नाक में स्पेक्टिकल रहता है, बूढ़े लोगों को देखा होगा, तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं तो जवान हूँ फिर भी चश्मे लगे हुए हैं, तुम में से बहुतों के चश्मे लगे हुए हैं। आजकल के ज़माने का इंस्टेंसेस अलग है, उस ज़माने में ये लिखा गया था। एनीवेज, सो स्पेक्टिकल्स नाक में रहते हैं, यहाँ पे नाक में ऐसे रहते हैं स्पेक्टिकल्स, और ऐसे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड पाउच ऑन द साइड, और बाजू में एक थैला रहता है उनका, जिसमें मान लो कोई मेडिसिन है या कोई खाने का वस्तु रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें रहते हैं उसमें। His youthful hose well saved a world too wide for shrunk sank. और उस वक्त में क्या होता है, उनका जो यूथफुल डेज जो हैं, he keeps on remembering well saved a world too wide for shrunk sank, मतलब the world becomes a fairy tale for him, you know, he tries to imagine everything in like in wide angle lens, सब imagine करने लगते हैं, but and the world remains very short. It's like, you know, he has a lot of things to do in his life, but कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो नहीं रहता है, वो यूथ नहीं रहता है, वो बॉडी वो सपोर्टिव नहीं रहता है, क्योंकि वी आर ऑन एन एलियन बॉडी। ये जो बॉडी है ये ग्रो हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मेरा सूल जवान है, समझ रहे हो। तो एक टाइम पे मेरा सूल जवान रहेगा, लेकिन बॉडी मेरा बिल्कुल, बुढ़ापे में मेरा बॉडी बेकार हो जाएगा ना, मैं वो तेज़ी से दौड़ नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि उस वक्त जो नाक बूढ़ा, मतलब नाक में चश्मे रहते हैं, लूज़ कपड़े लगाते हैं, बॉडी लूज़ हो जाता है, पैर लूज़ हो जाता है, एवरीथिंग लूज़ हो जाता है, और जो हमारे जवानी के जो बातें हैं वो सिर्फ बातें ही रह जाते हैं। वी वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वी कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद देखो, एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेवल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। और उसका जो मैनली वॉइस है, जैसे मेरा अभी मैनली वॉइस है, बहुत हैवी वॉइस है ना, थोड़ा हैवी करने की कोशिश कर रहा हूँ, हैवी है। तो ये जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा वॉइस जो है वो निकल आया, नम्र वॉइस हो जाएगा, टर्निंग इनटू अ चाइल्डिश वॉइस। अगेन वही पहले स्टेज में जैसे बच्चे जैसा मेरा वॉइस था, वैसे ही मेरा आवाज़ हो जाएगा। इस बार पाइप जैसा आवाज़ निकलेगा, पतला, श्रिंकिंग, विचलिंग साउंड। इससे और भी ये मतलब आता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। तुम देखना, अगर हमारे दादा दादी ये सब हैं, प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बातों पे गुस्से हो जाते हैं। वही चाइल्डिश मतलब बचपन वापस आ जाता है बुढ़ापे में। इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, हमें उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत से पेश आना पड़ता है। तो ये हम करेंगे, ठीक है, ये हम सीख रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा। और लास्ट सीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दैट दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। और लास्ट सीन में जो ये पूरा इसकी ज़िंदगी का जो हिस्ट्री है ख़त्म हो जाता है इन सेकेंड
चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, बिल्कुल बंदा चाइल्डिशनेस में चला जाता है, एकदम बच्चा बन जाता है बुढ़ापे में। एंड दिस ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम भूलना शुरू करते हैं, फॉरगेटफुलनेस आ जाता है, वी डोंट रिमेंबर थिंग्स, वी डोंट रिमेंबर इवेंट्स। कभी कभी जो माँ बाप हैं बच्चों को पहचान नहीं पाते, इतने बूढ़े हो जाते हैं, सलाई नहीं चला आता है। उसके बाद है सेंस टीथ, मतलब है नो टीथ, ना दांत रहते हैं, सेंस आइज, ना आइज रहते हैं, सेंस टीथ, ना टेस्ट रहता है, सेंस एवरीथिंग, कुछ नहीं रहता है, हम बिल्कुल ही बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरा डिस्कशन था, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। अगर तुम्हें कोई सवाल हो, यू नो माई कॉन्टैक्ट्स, यू नो माई ईमेल्स, प्लीज़ ईमेल मी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, एंड the answers will surely be provided, and good luck with the exam. Bye bye, I'll see you with the next video.